باتیں آج خدا کے کلام میں سے بیان کرنے کی، اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کی وجہ سے، آج کے سبق کی وجہ سے، میسج کی وجہ سے آپ بلیسفل ہوں گے۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے محبت کا پٹکا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریل سٹارٹ کی ہے ڈیوائن لو، الہی محبت جو خدا کی ذات کے اندر ہے، اور ویسا ہی لو، ویسی ہی محبت کلیسیا کے اندر نظر آنی چاہیے۔ تو اس ڈیوائن لو کی سیریل کا جو سرمن ہے محبت کا پٹکا، تو آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے آیت کو نکالیے۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے کلسیوں 3 باب اس کی 12ویں آیت۔ میں چاہوں گا کہ پہلے ہم افسیوں 3 باب اس کی 18ویں آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ سب مقصوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔ 19ویں آیت، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اور اب خداوند کے کلام میں سے کلسیوں 3 باب اس کی 12ویں آیت ہے۔ پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، آگے پڑھیے، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اور کلسیوں 3 باب کی 14ویں آیت خداوند کے کلام میں سے آگے ریفرنس لیں گے۔ لکھا ان سب کے اوپر، آگے لکھا محبت کو، پڑھیے ساتھ، جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکریہ سے بیٹھ جائیے۔ میں چاہوں گا پاک روح کے لیے، روح القدس کے لیے ہم زوردار تالیاں بجا کر خدا کے نام کو مبارک کریں۔ مجھے لگتا ہے جتنے لوگ ہم ہیں تالیاں بہت کم ہے، ذرا زوردار تالیاں خداوند کی جلال کے لیے۔ ہاللویا۔ تو خدا کی محبت آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہے، اسے جانا نہیں جا سکتا۔ خدا کی محبت کو نہ کوئی جان سکتا ہے، مگر خدا اپنے لوگوں پر اپنی محبت کھولتا ہے۔ دنیا کے اندر محبت اس لیے نہیں کیونکہ دنیا کے اندر جنگ و جدل ہے، دنیا کے اندر مار کٹائی ہے، دنیا کے اندر دشمنیاں چل رہی ہیں، دنیا کے اندر حسد ہے، لالچ ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے۔ اور اگر محبت ہوگی تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ محبت جو ہے وہ کلیسیا کے اندر نظر آئے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، خدا جب محبت ہے تو پھر کلیسیا کے اندر بھی محبت خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کے اندر خدا کی محبت نظر آئے، کیونکہ خدا کیا ہے، بولیے، محبت ہے۔ خدا کیا ہے، محبت ہے۔ تو پولس رسول محبت کو یوں جانتا ہے۔ میری طرف دیکھیے، میری طرف غور کریں، اس طرف غور کریں۔ خدا کے کلام کے اندر پولس رسول محبت کو یوں بیان کرتا ہے، وہ اس کو اس طریقے سے لیتا ہے کہ خدا کی ذات جو ہے محبت کا پٹکا ہے۔ محبت کا کیا ہے، محبت کا پٹکا وہ لیتا ہے۔ آپ کی یہ پٹکا کیا چیز ہے؟ آج تو آپ کو یہ پٹکے بہت کم نظر آتے ہیں، اس کی ریشو بہت کم ہے، بہت کم پٹکے نظر آتے ہیں۔ شاید اسکول کے اندر کوئی بچی آپ کو پٹکا کندھے پر لے کر ایسے کر کے باندھا ہو اسکول کی ڈریس کے اوپر۔ تو آج کی جو تعلیم ہوگی وہ پٹکے کے تعلق سے اور پھر ڈریس کے تعلق سے، جو ہم کپڑے پہنتے ہیں اس کے تعلق سے۔ تو کپڑوں کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، اور دوسری بات پٹکے کے تعلق سے سیکھیں گے، لباس کے تعلق سے سیکھیں گے، اور پٹکے کے تعلق سے سیکھیں گے جو لباس ہم پہنتے ہیں۔ آپ کو لباس سے انسان کی شخصیت نظر آئے گی۔ ہر شخص جو لباس پہنتا ہے اس کی شخصیت ویسی ابھر کر باہر آتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ مگر ہر شخص کو کی شخصیت کو جو ہے وہ ابھارتی ہے، اس کا لباس ابھار دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے دنیا کے اندر جب بھی کسی کو آپ دیکھیں گے، پہچانیں گے، اس کے لباس سے ہی پہچان سکتے ہیں۔ ملکوں کے لباس اپنے ہیں، جس ملک کا ڈریس اس نے پہنا ہوگا آپ جانیں گے کہ یہ بندے نے کیا کیا ہے، یہ اسی کا ہے۔ اگر شلوار قمیض پہنی تو آپ کہیں گے یہ پاکستانی شخص ہے، ٹھیک ہے نا۔ انڈیا کا لباس اپنا ہے، امریکہ کا لباس اپنا ہے، اور کنٹریز کا اپنا لباس۔ پھر سکول کے بچوں کا لباس آپ دیکھیں گے، لباس کو دیکھتے ہی آپ جان جاتے ہیں یہ بچہ کیا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، بچہ کیا ہے۔ تو شادی کا لباس بھی آپ جان جاتے ہیں فوراً، دلہن کا لباس، دولہا کا لباس آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ لباس انسان کی شخصیت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ فوجیوں کا بھی لباس ہوتا ہے، فوجیوں کو لباس کو دیکھ کر آپ جان جاتے ہیں یہ فوج کے اندر بندہ، یہ سپاہی ہے، یہ فلاں شخص ہے، اس کے لباس سے آپ واقف ہو جاتے ہیں۔
पहचान लेते हैं या नहीं पहचान लेते हैं? हर बंदा अपने लिबास से पहचाना जाता है। स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर यूनिफॉर्म दी जाती है, लिबास से आप पहचान जाते हैं। और दीगर आप देखिए चीजों के ऊपर आप लिबास ही से पहचान लेते हैं। मगर जिस लिबास की मैं बात करने लगा हूं उसके चौगे के तल्लुक से पौलुस रसूल कहता है कि लिबास पहना है, उसके बाद उसके लिए क्या कहता है? मोहब्बत का पटका ऊपर बांधा हो। लिबास का जो लास्ट हिस्सा होता है, लिबास आखिरी जो पार्ट होता है वो पटका होता है। जैसे आज बेल्ट पहनी जाती है, ये इसे पटका, पुराने अहदनामा के अंदर बाइबल में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ पटका, मगर आज की वो बेल्ट है। आज लोगों ने बेल्ट पहनी होती है। तो यानी इसका मतलब जब आपने पटका बांधा, बेल्ट बांधी, इसका मतलब आप तैयार हैं। आप क्या हैं? तो पुराने अहदनामा के अंदर, उस दौर के अंदर पटके पहने जाते थे। ये पटके मुख्तलिफ डिफरेंट कलर के होते थे, मुख्तलिफ यानी महंगे होते थे, सस्ते होते थे। हर बंदे ने पटका पहना होता था, अमीर भी गरीब भी पहनता था, इज्जतदार भी पहनता था, और लो क्वालिटी का बंदा भी क्या करता था? पटका पहनता था। और ये पटके ऐसे नहीं होते थे बैल्ट की तरह इस तरह बैठे, ऐसे भी पटके होते थे। ये कंधों से लेकर सारा लिबास को उसने कसा होता था, ये पटके। और फौजियों के अपने पटके होते थे, वो होते थे चमड़े के पटके। फौज के अंदर तलवारें उन पटकों के अंदर डाली होती थी। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, रूह की तलवार लेकर क्या करो, जो कमर से बंधी हुई है, पटके के अंदर है। ठीक है, तो उस दौर के अंदर पटके बांधे जाते थे, पटके। और क्योंकि उस दौर के अंदर चोगे पाए जाते थे, इस तरह के ड्रेस होते थे, चोगा टाइप। और जब उन्होंने पटका खोलना होता था, खोलकर, इसका मतलब जब आराम करना होता था तो खोल देते थे, वरना पटका जब उन्होंने सफर करना होता था, जाना होता था, तो पटका ऊपर बांधते थे। तो अगर पटका नहीं बंधा, इसका मतलब है हवा उसमें भर जाती थी, बंदा चल नहीं सकता था। हवा भरने की वजह से वो दुश्वारी होती थी, फिर उसे पटका बांधने पड़ते थे ताकि वो क्या कर सके, चल सके बंदा इजीली। तो ये पटके उस दौर के अंदर, मैंने बताया मिसाल की किताब के अंदर देखिए लिखा है कि नेकोकार बीवी, लिखा है वो पटकों का कारोबार करती थी, उसके बारे में लिखा है। नेकोकार बीवी लिखा है वो बिजनेस में पटकों का कारोबार करती, हर तरह के महंगे वो पटके बनाती, और फिर क्या सेल आउट करती, पटकों को क्या करती, बेचती सौदागरों के हाथ में। ये पटकों का जिक्र है। अक्लमंद बीवी जो है, नेकोकार जो बीवी है, वो पटकों का काम करती, यानी बिजनेस उसका था, और बहुत वसी उसका बिजनेस था। पटके, मैंने बताया बड़े बड़े महंगे पटके थे, और ये पटके गिफ्ट के तौर पर भी दिए जाते थे। ये पटके ड्रेस के ऊपर आखिरी जो हिस्सा होता था, पटका ही होता था, पहना जाता था। और मैंने बताया अगर पटका नहीं पहना, इसका मतलब आप रेस्ट पे हैं, आपने निकलना नहीं, चल नहीं सकते, ड्रेस ही ऐसा पहना हुआ है। तो मैंने बताया बड़े बड़े चोगे होते थे, उन पर पटके बांधे जाते थे। मैंने बताया डिजाइन के पटके होते थे, कढ़ाई वाले पटके होते थे, और बड़े बड़े महंगे पटके यूज होते थे, जंगों में यूज होते थे। और फिर काहिन भी पटके पहनते थे, काहिनों ने पटके पहने होते थे। और आज देखिए मुख्तलिफ तरह के जो ड्रेस होते हैं, जैसे आज लोगों को बड़ी पहचान है ड्रेसेस की, कपड़ों की, गारमेंट्स की, फौरन पहचान लेते हैं, महंगे से महंगा लेना चाहते हैं। तो आप देखिए उस वक्त पटकों का दौर था, पोशाक भी होती थी और पटके भी उस दौर के अंदर बहुत महंगे यूज किए जाते थे, पहने जाते थे। लिहाजा पौलुस रसूल इसके ताल्लुक से क्या कहता है? वो कहता है कि मोहब्बत का पटका हमने पहना हो। किस चीज का? लिबास तो पहना है, वो इस पटके को क्या कहता है? मोहब्बत का पटका हमने पहना हो। किस चीज का पहना हो? मोहब्बत का पटका पहना हो। पहले तो कहता है लिबास पहना हो, तो लिबास की वो डेफिनेशन क्या करता है? दर्दमंदी का लिबास, हालेलुया, हिलम का लिबास, मेहरबानी का लिबास, रहम का, कंपैशन और काइंडनेस के, मेहरबानी का लिबास क्या हो? पहना हो। वो कहता है ये लिबास पहना हो, और इस लिबास के ऊपर लिखा है मोहब्बत का पटका हमने पहना हो। आमीन। तो ये मोहब्बत का पटके के ताल्लुक से भाइयों वो कहता है कि मोहब्बत का पटका हमने पहना हो। और ये मोहब्बत का पटका मैं जो बता रहा हूं, ये मोहब्बत का भाई पटका, मोहब्बत का पटका ड्रेस के ऊपर पहना जाता, पोशाक के ऊपर पहना जाता। तो पहले तो पोशाक इस तरह की हो, किस तरह की? उसके अंदर आपकी शख्सियत नजर आए। मैंने बताया ड्रेस से आप पहचान लेते हैं, कपड़ों से पहचान लेते हैं इंसान की शख्सियत। तो कपड़ों से मुराद, मतलब कि पोशाक से मुराद दर्दमंदी का लिबास पहना हो, रहम का लिबास,
आपकी जिंदगी में रहम नजर आए। जैसे आप कपड़े पहनते इस तरह आपके अंदर की शख्सियत कपड़ों से जाहिर हो। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने लिखा दर्दमंदी का लिबास पहना हुआ था। यीशु मसीह का लिबास कैसा था? दर्दमंदी का लिबास था, मेहरबानी का लिबास था, हिलम का लिबास था, रहम करने वाला खुदावंद यीशु मसीह था। आमीन। खुदावंद के कलाम लिखा जब यीशु मसीह मनादी करने लगे तो यीशु मसीह ने भी पटका पहना था। पता है या नहीं पता? किसी को पता? लिखा जब यीशु मसीह पांव धोने लगे शागिर्दों के, लिखा उसने पटका बांधा। आमीन। पानी लेकर लिखा पटका बांधा और अपने शागिर्दों के पांव धोने शुरू किए। पहले उसने लिखा चोगा पहना और फिर क्या किया? पटका ऊपर बांधा और अपने शागिर्दों के क्या किए? उसने पांव धोने शुरू किए। यीशु की जो शख्सियत थी उसकी जिंदगी के अंदर भाइयों उसके लिबास से नजर आती थी, और उस लिबास के ऊपर भाइयों नीले रंग की जो होती थी वो भाइयों जो कॉर्नर होता था वो नीले रंग का होता था, वहां पर पट्टी लगी होती थी, उसका मतलब होता था रहम। इसमें खुदावंद के कलाम में लिखा है झालर लगी होती थी उस लिबास के कोने पर नीले रंग की। यीशु मसीह की चोगे के जो झालर थी नीले कलर की, इसका मतलब रहम। यीशु मसीह की जिंदगी में रहम है। आमीन। कंपैशन है। और लिखा जब जिसके उस औरत के जिसके 12 साल से खून जारी था, लिखा उसने उसकी झालर को जब छुआ, लिखा वो शफा पा गई। आइए खुदा उनके जलाल के लिए हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो झालर होती है नीले रंग की होती थी, इससे मतलब होती थी इसका मतलब है कंपैशन, इसका मतलब है रहम, कि मसीह की जात के अंदर रहम है। आमीन। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा उस दौर के अंदर जब मसीह ने नजर की तो लिखा है कोई मेरी भेड़े जो उसकी भेड़े जो थी, लोग जो थे, लिखा है वो भूखे मर रहे थे। फिर लिखा बीमारियों के अंदर जकड़े हुए थे, गुनाहों के अंदर जकड़े हुए थे, कोड़ के अंदर थे उस दौर के अंदर। और खुदावंद के कलाम में लिखा है डीमन पोसेस, बदरूहों से जकड़े हुए लोग थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? लिखा उस भीड़ को देखकर उस पर तरस आ गया। लिखा कोई कोड़ी मिल जाता तो यीशु मसीह पर रहम, यीशु मसीह की जिंदगी में रहम जारी हो जाता, क्योंकि वो रहम का लिबास पहने हुए था, तरस से भरा हुआ था, हिलम उसके अंदर था, मेहरबानी वो करने वाला था। और उसके लिबास से खुदावंद के कलाम लिखा है मुर, ऊद और तज की खुशबू आती है। आइए जोरदार तालीम जाए हालेलुया। मुर, ऊद और तज मतलब कि जैतून का तेल भी इसमें मतलब कि जब मसा का तेल बनाया जाता तो ये सारी क्वालिटी उसके अंदर डाली थे। ये इससे भाई हिकमी गोंद से यानी कि तैयार किया जाता था, हिकमत से, गुदी हुई हिकमत से तैयार किया जाता था। और इसके अंदर ये स्पाइसेस यूज होते थे, मुर, ऊद और तज। और यीशु मसीह की जिंदगी में यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसकी हर लिबास से यानी मुर, ऊद और तज की खुशबू आती है, यानी वो हलीम है, फरोतन है, लोगों पर रहम करता। उसके जैसी उसके अंदर से शख्सियत थी वैसे ही उसके लिबास से उसकी, हालांकि सादा सा चोगा पहना था मगर उसकी जिंदगी में रहम नजर आता था। आमीन। मैंने बताया बदरूहों के अंदर लोग झगड़े हुए उसके पास जब आते थे तो यीशु मसीह उनको बदरूहों से आजाद कर देता था। कोई कोड़ी आते, बीमार आते, यीशु मसीह उनको कोड़ से उनको पाक साफ कर देता। कोई भूखे लोग आते, यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती थी। क्यों लगी रहती थी? क्योंकि यीशु मसीह खाना खिलाता था। आइए जोरदार तालियां हालेलुया। आज वो हमें भी खाना खिलाता है। तो आज ऐसे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं तो वहां पर लोग ज्यादातर खाने के लिए आते हैं, भी खाना मिलेगा अच्छा, वो आ जाते हैं सुनने, कलाम पर तवज्जो नहीं होती, वो खाने के लिए अच्छा खाना मिलेगा। उस दौर के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते थे, भीड़ में से ऐसे लोग होते थे, कहते चलो यार कोई समझ नहीं लगती, चलो रोटी तो मिलेगी। और वो भूखे लोग उस दौर के अंदर, क्योंकि लिखा है वो बीमार लोग थे, खुदा से दूर थे, गुनाह के अंदर मर रहे थे। और यीशु मसीह ने लिखा है उसको उन पर तरस आया, यीशु को उन पर उनके लिखा सारे बीमारों को ठीक कर दिया, भूखों को खाना खिलाता था, क्योंकि उसके अंदर रहम था, उसने रहम का लिबास पहना हुआ था, उसके अंदर मेहरबानी थी, तरस से भरा हुआ था। इस तरह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी क्या हो, हमने भी ये लिबास पहना हो। आमीन। और लिखा है यीशु मसीह ने फिर मोहब्बत का पटका भी पहना हुआ था, मोहब्बत करता था। आमीन। खुदावंद के कलाम लिखा है बहते हस्सा के ऊपर 38 साल का एक शख्स बीमार पड़ा था, कोई हाउस में उतारता नहीं था, 38 साल तक वो उसी तरह बेचारा पड़ा रहा। और लिखा कोई उस पर रहम ही नहीं करता था, मगर रहम करने वाला ये यीशु मसीह वहां पर आया तो उसने रहम किया, उसने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल, फिर अपने घर को चला जा। आइए इस बात की जरूरत है, ये यीशु मसीह की जिंदगी में रहम था, तरस था। आमीन।
रहम और तरस का लिबास पहना हुआ था उसने, और इसीलिए लिखा है उसके हर लिबास से मुरऊद और ताज की खुशबू आती है। और लिखा है लिबास के ऊपर मोहब्बत का पटका पलूस रसूल कहता है वो पहना हुआ था। आमीन। इसलिए खुदावंद के कलाम में क्या पलूस ने भी पटका पहना होता था, और एक घर के अंदर वो गया, और वहां पर जब ठहरा हुआ था तो वहां पर एक नबी आया, तो वो क्योंकि वहां पर रेस्ट कर रहे थे, पलूस रसूल ने पटका उतार के रखा हुआ था। नबी एक आ गया उस घर के अंदर, उसे नहीं पता कि ये पलूस का पटका है। उसने ये पटका देखते ही कहा, उसने नबूवत कर दी, उसने कहा, ये पकड़ के कहा, ये पटका जिसका है वो यरूशलेम में पकड़ा जाएगा। पलूस रसूल क्या कहता है, फौरन उठ के कहता है, नबी तू पटके की बात करता है, मैं पकड़ा जाऊंगा, कैद हो जाऊंगा, मैं तो मसीह की खातिर मरने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। तू पटके की बात करता है, मैं तो उसके लिए मर जाऊं, मुझे मौत ही आ जाए, मार दे वो मसीह की खातिर। कहता तू पटके की बात करता है, तूने नबूवत सही की है, लेकिन मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। इसी तरह हलीमी फरोतनी मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर हो भाइयों, मोहब्बत का पटका पहना हो हमने भाइयों, मोहब्बत का पटका पहना होगा तभी चल सकेंगे, वरना चलने में दुश्वारी। लिबास ऐसा हो मुरऊद और ताज की खुशबू, इसका मतलब है दर्दमंदी का लिबास मेरी और आपकी जिंदगी में हो, दूसरों पर रहम करने वाले हो, तरस खाने वाले हो, भूखों को खाना खिलाने वाले हो, कोई आपकी मदद का तलबगार है तो उसकी मदद करने वाले हो, मदद कर सकते हैं कर दे, सख्त ना हो। लिखा वो 38 साल से बेचारा पड़ा था, कोई मदद ही नहीं करता था उसे उठा कभी, यीशु मसीह ने उसकी हेल्प की, उसने हाउस छाट अपनी चारपाई उठा और अपने घर को। आमीन। ये रहम यीशु मसीह की जिंदगी है। ये हमारी जिंदगी से भाइयों हमारी शख्सियत जाहिर होती है, जो अंदर है वो हमारे लिबास से पता चले। यीशु मसीह ने सादा लिबास पहना, मगर उसकी जिंदगी से दर्दमंदी थी, लोग जानते थे ये रहम करता है, दर्दमंदी रखता है, और मोजात से भरा खुदा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, लिहाजा उसके हर लिबास से लेकर मुरऊद और बोलिए ताज की खुशबू आती है, और ऊपर मोहब्बत का पटका मैंने और आपने पहना हो। आमीन। लिहाजा मेरी और आपकी जिंदगी में भाइयों पलूस की तरह मोहब्बत का पटका पहना हो, मोहब्बत करने वाले हो, नफरत करने वाले ना हो, मोहब्बत करने वाले हो, रहम करने वाले हो, दूसरों से प्यार करने वाले हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, हिलम हो अंदर, रहम हो, दर्दमंदी हो, दूसरों के लिए दर्द रखने वाले हो, तभी हम खुदावंद में क्या करेंगे, खुदा की मोहब्बत हमारी जिंदगी में होगी। हमारे हर लिबास से मुरऊद और ताज की खुशबू, ये रहम दिली, दर्दमंदी, और हमारी जिंदगी में मेहरबानी होगी, दूसरों पर रहम करने वाले होंगे। लिहाजा मसीह की जिंदगी में ये रहम था, लिहाजा मेरी और आपकी जिंदगी में भी रहम होगा, तभी हमने मोहब्बत का पटका पहना होगा। आमीन। ऊपर हमारी मोहब्बत का पटका, मोहब्बत करने वाले हो, रहम करने वाले हो, प्यार करने वाले हो, दूसरों से मोहब्बत करने वाले हो, माफ करने वाले हो, दूसरों से प्यार करने वाले हो। आमीन। तो मसीह की जिंदगी में मसीह का ये लिबास था, इस तरह मेरा और आपका भी यही लिबास हो। आइए अपने सर को झुकाएं।